नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन को मानद डायरेक्टर की उपलब्धि प्रदान करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आयोजित विशेष दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आकर्षण का केंद्र अब हिंदी प्रशांत की ओर बढ़ रहा है। President met Prime Minister Modi. This was the connect between western coastline, the state of Gujarat, and Zanzibar in particular, I think was very much the subject of conversation. Economic ties between our two countries have always been a strong pillar. I am happy to inform that despite the global disruption and challenges posed by the pandemic, our bilateral trade has witnessed strong growth from both sides and today stands at close to $6 billion. With India already as the 5th largest economy, the Indian government is vigorously pursuing sweeping reforms aimed at ensuring inclusive growth. India has grown as an economic powerhouse, and this offers opportunities to businessmen from Tanzania to be part of our growth story. While India is one of the fastest growing economies of the world, Tanzania has also displayed impressive economic performance. This offers enormous opportunities for further cooperation and convergence between the two countries, and I should say we are really limited only by our ambition. Our engagement with Tanzania, indeed with all of Africa, continues to be guided by the 10 principles enumerated by Prime Minister Modi in July 2018. In essence, it is cooperation based on our partners' priority. In the contemporary era, the center of gravity is now moving towards the Indo-Pacific, and that also encompasses the east coast of Africa. Guided by our SAGA policy, we engage Tanzania as a littoral neighbor. Our cooperation can make a notable contribution to maintaining peace, prosperity, and security, and ensure secure, free, and open shipping lanes in the Indian Ocean. So, friends, real partnerships are driven by exchanges of experience which identify and constantly refresh collaborative opportunities. Those who are a living bridge in this regard hold a particular value for our ties. In the person of the Honorable President Samia Suluhu Hassan, we have today amidst us exactly such an inspiration. This conferment, I am very confident, is a message that relations between our two countries will continue to further grow and prosper in the times to come. Thank you. युद्ध की आग में जल रहे इजराइल फिलिस्तीन के बीच आज चौथे दिन भी जंग जारी है और अभी तक इसके शांत होने के दूर दूर तक कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इजरायली सेना हमास के प्रमुख ठिकानों को उड़ा रही है। हमास के द्वारा इजराइल पर हुए हमले में 700 से अधिक लोगों की जान चली गई और 2300 के करीब लोग घायल हो गए हैं। अब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना लगातार आतंकवादियों के खात्मे का अभियान चला रही है। इसके लिए जम्मू कश्मीर में जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकवादियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। शोपियों में सेना के जवानों और आतंकियों के बीच हुई ताजा मुठभेड़ में भारतीय सेना ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया है।
रात में सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली थी कि 2 टेररिस्ट अलशीपुरा में देखे गए हैं। तो इस खबर पे जेकेपी पुलिस और 44 आरआर और 178 सीआरपीएफ की ज्वाइंट फोर्सेस ने कॉर्डन किया था और रात में अराउंड 1 बजे के अराउंड हमारे फोर्सेस के ऊपर फायर किया टेररिस्ट लोगों ने। रात भर ही ऑपरेशन चला है और सुबह 7 बजे के अराउंड 2 टेररिस्ट, दोनों लोकल हैं शोपियां के, मारिफत मगलू जो कि चैगुन का रहने वाला है और जाजिम फारूक जो शिरमाल का रहने वाला है, ये दोनों इस ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज हुए हैं। मैम किस केस में इन्वॉल्वमेंट थी इनकी? जाजिम फारूक की इन्वॉल्वमेंट अचन में जो पंडित की किलिंग हुई थी संजय जी की, उसमें इन्वॉल्वमेंट है और मारिफत की इन्वॉल्वमेंट एक्टिव होके फिर कॉर्डन तोड़ने में ही है। तो कितना अच्छा सक्सेसफुल रहा है ऑपरेशन? ये बहुत सक्सेसफुल हमारे लिए फोर्सेस के लिए माना जाएगा क्योंकि मारिफत लगभग 1 साल से एक्टिव था और जो हमें खबर मिल रही थी कि ये दूसरा कोई अटैक प्लान कर रहे हैं और रिक्रूटमेंट की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी है। करीब 8 करोड़ की लागत से बलिया जिले के फिरोजपुर में मगई नदी पर बन रहे पुल का बीम गिर गया। वहीं बीम गिरने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया और आसपास के लोग दहशत में आ गए। फिलहाल मामले में किसी जानहान के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सेतु निगम द्वारा ग्राम फिरोजपुरम टकरिया के बीच में मगही नदी पर एक पुल बनाया जा रहा था जिसकी लंबाई लगभग 80 मीटर थी और उसकी लागत 8 करोड़ 15 लाख थी। कल उसकी बीम गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, बीम उसकी गिर गई है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधिशासी अभियंता आरईडी और एईडीआरडीए की त्रिस्तरीय टीम गठित की गई है और जांच आख्या 3 दिन के अंदर ही मांगी गई है। इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु शासन को पत्र लिखा जाएगा। सर क्या वजह है सर गिरने के, किस तरह से? उसका कारण देखिए जांच में मैंने इसीलिए तकनीकी टीम बनाई है, उसमें कारण भी आएगा और कौन कौन लोगों की लापरवाही रही है वो भी आएगा। तो जांच आख्या आने पर विस्तृत रूप से आपको और जानकारी दी जाएगी। कितनी लागत से और कितना किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है? ये लगभग 80 मीटर लंबा था और 8 करोड़ 15 लाख रुपए इसकी लागत। चेन्नई में तमिलनाडु के किसानों ने धान और गन्ने के लिए न्यूनतम निर्धारित मूल्य सहित अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।